Today we're going to start a topic about judging, a very misunderstood part of Christian life, whether we should judge people or not. आज हम एक नए विषय पे मनन शुरू करेंगे और मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे दूसरों को कैसे न्याय करने लगते हैं। Now, are we supposed to judge others in terms of correcting them? तो प्रश्न ये उठता है, क्या हमारे को किसी को सही करने के लिए क्या उनका न्याय करना सही बात है? Now, it is a very misunderstood part of Christian life, and I want to refer to the 7th chapter of Matthew, where people just take the first 2 verses and leave out the next 3 verses. और ये मसीह लोगों के अंदर ये बड़ी समस्या इस बात को लेके, और मत्ती 7वें अध्याय की वो जो पहली 2 आयतें उनको तो पढ़ लेते हैं और उसके बाद की वो छोड़ देते हैं। This is part of what Jesus spoke when he delivered the Sermon on the Mount, referred to the Sermon on the Mount. और ये पहाड़ी संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसका ये भाग है। In 7th chapter Matthew, from verse 1, he tells the people, do not judge or you be judged, but the way you judge, you will also be judged. और प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी संदेश में ऐसे बोला, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। The same way you measure out to others, you will also be measured. और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Based on these 2 verses, people think we should never judge anybody, otherwise it is not right before God. और इन 2 आयतों के हिसाब से लोग सोचते हैं कि हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। Let's look at the next 3 verses, 3, 4 and 5. पर अगर हम 3 से 5वें आयतों को देखें, the Lord tells the people, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye when you have a plank in your own eye? तो यीशु मसीह कहते हैं, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? How can you say to your brother, let me remove the speck from your eye when you have a plank in your eye? First, remove the plank, you can see better than remove the speck. और जब तेरी आंख में लटा है तो वो अपने भाई को क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? वो कहता है पहले अपनी आंख का तिनका निकाल, तब तू भली भांति देख पाएगा। So the Lord said, do not judge. What he means is, do not judge with the plank in your eye. जो परमेश्वर यीशु मसीह न्याय ना करने की बात कर रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि अपनी आंख में लट्ठा लेके दूसरे का न्याय मत कर। Now, speck of sawdust and plank are both same material. और जो तिनका है और जो लट्ठा है वो दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं। Both are wood. दोनों लकड़ी के होते हैं। What it means is, when you see a brother having a particular sin in his life, and you have the same sin to a larger degree, then don't judge. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखते हैं किसी भाई के अंदर कोई गलती है, कोई पाप आपको दिखाई दे रहा है, पर आप अपने जीवन में उससे बड़ा, उससे ज्यादा पाप, उसी से आप ज्यादा, वही पाप आप उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो आप उसका न्याय मत कीजिए। Have the same kind of sin. Now, every one of us sins in so many ways. But if you correct somebody and you have the same sin in your life with a larger degree, then don't judge. That's the context of saying don't judge. और पाप तो हम कई तरीके के करते हैं, पर अगर वही पाप जो वो व्यक्ति कर रहा है, वही पाप उससे ज्यादा हमारे अंदर, हमारे जीवन में है, तो हमारे को उसका न्याय नहीं करना। So in other words, do not judge with a plank in your eye, but has the same sin to lesser degree. But after removing the plank, you can see better, or rather you'll know how to come out of the sin. Then you can correct others. You are supposed to judge others. तो हमें ये बताया गया कि आप अपने आंख में तिनका लेके, वो पाप लेके आप दूसरे का न्याय ना करें। पहले अपने आंख के तिनके को निकालें, लट्ठे को निकालें, फिर दूसरे का न्याय करने की बात सोचें। We speak about 4 kinds of judging. 2 we have to do, 2 we should not do. और 4 तरीके के न्याय हैं जिसमें से 2 हमें करने हैं, 2 नहीं करने हैं। The first one we have to do is about correcting people in the body of Christ who are indulging in sin. और पहला है कि जो मसीह की देह में जो है, उन लोगों का न्याय जो उस पाप में गिरे हुए हैं। In 1 Corinthians chapter 5, 12 and 13, the Apostle Paul writes, और पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 12वीं-13वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, what business of mine is to judge those outside the church? I not judge those inside the church. God judge those outside the church. क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने का क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी के। हाँ, So we are supposed to judge those inside the church, the body of Christ. तो जो मसीह की देह में जो कलीसिया के अंदर लोग हैं, हमारे को उनका न्याय करना है। After removing the plank in our eyes,
पर उससे पहले हमें अपनी आंख में से उस लट्ठे को निकालना है। And therefore, we can't be a spectator in people continuing in sin in the church, but rather correct them for their good. तो हम जो अगर कोई गलती कर रहा है कलीसिया में, तो हम मूक दर्शक बन के ना रहें, पर हमें उनकी पाप के लिए, उनकी गलती के लिए उनको सही करना है। So how do you handle sin in the church? तो हम जो कलीसिया का जो पाप है उसको हम कैसे उसका उसका सामना करें? Using God's word, we have to correct people for their betterment. परमेश्वर के वचन का प्रयोग करके उन लोगों की भलाई के लिए उस वचन उनको सही रास्ता दिखाना है। In 2 Corinthians, uh, wait a minute, the reference with regard to correct Bill, 2 Timothy, 3rd chapter, 16, 17, the Apostle Paul writes, और दूसरा तिमोथेयुस तीसरा अध्याय उसकी 16वीं 17वीं आयत में पौलुस ऐसे लिखते हैं तिमोथेयुस को, all scriptures breathed and used for teaching, correcting, rebuking, and training in righteousness, that the man of God be thoroughly equipped for every good work. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। The motivation for judging a fellow believer is to build up that person to a closer walk with God and be pleasing to God. तो जो मकसद है उस व्यक्ति को ठीक करने का वो ये है कि वो उसे उसे सुधारें, उसको धर्म की शिक्षा दे और वो परमेश्वर के नजदीकी में और चलने लगे। How does the church go about it? और कलीसिया को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। In Matthew 18 chapter 15 to 17, read about how we deal with sin within the body of Christ in the church. मत्ती 18वां अध्याय 15 से 17वीं आयत के बीच में हम देखते हैं कैसे अगर कोई कलीसिया में कोई पाप है तो उस व्यक्ति का हमें कैसे सामना करना है। If brother sins, go and tell him his fault. यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जाकर अकेले में बातचीत करके उसे One समझा। to one, to one, go and tell him. व्यक्तिगत तौर पे उससे बात कर। If he repents, you have won your brother back. और वो तेरी सुन लेता है तो तूने अपने भाई को पा लिया। We shouldn't do it publicly, do it one to one. ये हमें सबके सामने नहीं करना, उसे व्यक्तिगत तौर पे आपस में बात करना है। Doesn't listen, tell 2 or 3 people. और वो अगर नहीं सुनता तो ये 2 या 3 जनों को उनके साथ लेके जाके उसको समझाओ। If still doesn't listen, tell the whole church. और यदि वो फिर भी ना माने तो कलीसिया को सबके सामने कलीसिया को बताओ। If still doesn't listen, put him out of the church as you treat a tax collector or a sinner. और वो फिर भी ना सुने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले समझ के उसे ऐसा समझ लो जैसे महसूल लेने वाला है अन्य जाति है और निकाल दो उसको। And when you put the person outside, don't keep him permanently outside. और अगर किसी को निकाल देते हैं तो हमेशा के लिए उसको बाहर मत निकाल दो। The Apostle Paul was very severe with someone who was committing terrible sin in the church in Corinth. और पौलुस जो कोरिन्थ की कलीसिया में कोई व्यक्ति था वो बहुत बुरे पाप में था और पौलुस उसके साथ बड़ी सख्ती से उसके साथ बर्ताव करते हैं। And he said, expel the immoral brother. और कहा कि उस व्यक्ति को उस ऐसे पापी व्यक्ति को वहां से निकाल दो कलीसिया में से, But not permanently. और हमेशा के लिए ना निकाल देना। In second letter of Corinthians, chapter 2, 6 to 8, he writes about how और दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 6 से 8 में वो बताता है कि कैसे उसको उसके साथ ना कर उस बर्ताव करना है। the punishment inflicted upon him is a majority sufficient for him. वो कहता है ऐसे जन के लिए यह दंड तो भाइयों में से बहुतों ने दिया, वो बहुत है। Being put out of the church very humiliating, and there's a punishment for him, that's enough for him. उसको कलीसिया में से निकाल दिया, ये उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है और ये उसके लिए काफी है। Then he says, forgive him and comfort him. और फिर वो कहता है उसको अपराध क्षमा करो और उसको शांति दो। That it's not overcome by excessive sorrow. ऐसा ना हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। And reaffirm your love for him. और अपना प्रेम जो है उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। And you put him out of the church, most people when they put out of the church, it's very humiliating, and they will repent, they'll want to come back. Then forgive him, comfort him, reaffirm your love for him, and bring him back to the body of Christ. और ऐसे व्यक्ति को जब निकाल देते हैं तो बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है, पर वो जब पछतावा करता है क्योंकि वो कलीसिया में दोबारा आना चाहेगा, और जब ऐसा करता है आप उसको क्षमा कर दो, तो ऐसा करके आप अपने प्रेम का प्रमाण देते हो। If we don't do that, the Apostle Paul said, we are not unaware of the devil's schemes. Devils will try to condemn that person. 11th verse talks about being aware of the devil's schemes. और 11वीं आयत में पौलुस बताते हैं कि अगर हम उसे नहीं करते तो शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है।
When a person accepts his mistake and wants to repent and live a new life, they must help him come out of it. Only if they don't want to repent, then you put them out of church, one to one, two or three people, church, and put them out of church. If they want to come out of sin, you must help them come out of it. तो पौलुस बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप में है, आप पहले उस व्यक्तिगत तौर पे, फिर एक दो व्यक्ति, फिर पूरी कलीसिया के सामने नहीं मानता तो कलीसिया के सामने उसको बताएं, और वो अगर नहीं मानता तो उसको निकाल दें। पर अगर वो व्यक्ति पछतावा करता है, अपनी गलती को मानता है, तो आप उसको क्षमा करें, और ऐसा करके आप उसको प्रेम का प्रमाण देते हो, उसको वापस जीत लेते हो। And Galatians chapter 6, verse 1 says, brothers, if someone is caught up in a sin, you who are spiritual should restore him gently. और गलतियों 6:1 में लिखा है, भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपने भी चौकस रहो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। And do it in love. और ऐसा जो है प्रेम से करना है। We have to correct people in the church, judge them when they do something wrong for their own benefit, for them to be better instruments in God's hands. तो कलीसिया में अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, बुराई में फंस जाता है, तो हमारे को उसको जरूरी है कि उसको हम ठीक करें, उसको सुधारें, सही रास्ते पे लेके आए, ताकि वो अपने पापों से फिर जाए। One to one, go and tell him. व्यक्तिगत तौर पे जाके उससे बात करें। I mean, hear of somebody in the church, not necessarily our own church, but some other part of the world, or some other city, and they do something wrong. Don't gossip behind the person's back. पर कोई व्यक्ति यदि आप देखते हैं बाहर है, दूसरी जगह है, संसार में कहीं पे भी वो ऐसे पाप में है, तो आप उसके बारे में खानापूसी या पीछे पीछे उसकी बुराई ना करें। You have a chance to go and meet the person, go and tell him his fault one to one and bring him back. If you can't do that, don't please gossip, slander, and malicious talk. तो अगर आप व्यक्तिगत तौर पर उससे मिल सकते हैं तो आप उसको जाके बताएं, अगर नहीं कर सकते तो आप पीठ पीछे उसकी बुराई, उसकी चुगली या उसके बारे में ऐसी लुतराई ना करें। So many people keep on talking about other people, slandering them, and it grieves the heart of God. बहुत से लोग किसी व्यक्ति के बारे में पीठ पीछे उसकी बुराई करते रहते हैं, और ऐसी बात से परमेश्वर को बहुत दुख होता है। In Romans chapter 14, verse 4, the Lord, through Paul writes to the church in Rome. और रोमियो 14:4 में रोम की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं, Who are to judge someone else's servant? तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? To this master, he will stand or fall. उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है। He will stand because the Lord is able to make him stand. वरन वह स्थिर कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। So don't criticize people behind the back. If you have a chance, go and correct them. You can't do that, keep quiet. Rather, you pray for them. When you pray for them, God hears, because God loves prayers for intercessory prayers for people who need that prayer. तो अगर आप व्यक्तिगत तौर पर उसको बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं बता सकते तो आप उसके पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, और परमेश्वर को जो है उसके लिए नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर उसको सही कर सकते हैं, और परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत भी है। What's happening in the churches today is they take half a passage, 7th chapter Matthew verse 1 and 2, and say, I should not judge because otherwise I'll be judged. And they don't correct each other in the church. और बहुत सी कलीसियाओं में आजकल यही हो रहा है, मत्ती 7वें अध्याय की पहली 2 आयतों को पढ़ लेते हैं कि हमें दूसरे का न्याय नहीं करना, और वो इसलिए जो आदमी गलती कर रहा है उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं करते, They don't repent of their own sins. और वो अपने पाप से भी नहीं फिरते। You think if I go and correct him, he'll correct me. I've got a plank, he's got a speck. If I talk about his speck, he'll talk about my plank. And Jesus said, don't judge. So I won't judge him, he won't judge me. तो कहते हैं भाई मेरी आंख में लट्ठा है, उसकी आंख में तिनका है, मैं उसको बताऊंगा तो वो मेरे उसके आंख के तिनके की मैं बात करूंगा तो वो मेरे आंख के लट्ठे की बात करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है किसी का न्याय ना करो, इसलिए मैं तो चुपी हूँ। I have my plank, he's got his speck. I keep my plank, he keeps his speck. So when Christ comes second time, the church will be full of planks and specks. और वो कहते हैं कि अगर उसकी आंख में तिनका है, मेरी आंख में लट्ठा है, और हम इस तरह से रखेंगे कलीसिया के सबकी आंख में से, जब प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो कलीसिया में देखेंगे कि सबकी आंखों में लट्ठे और तिनके ही पड़े हुए। So we are supposed to deal with sin in the church. We are supposed to judge one another in the body of Christ and do it in love, and do it only after we have removed that same sin from our own lives. तो हमें जब कलीसिया में कोई व्यक्ति देते हैं उसको सुधारना है और उसको सही रास्ते में बताना है, पर वो करने से पहले, व्यक्तिगत तौर पर बताने से पहले अपनी आंख का लट्ठा हमें निकालना है, अपने पाप को क्षमा करना है, तब हम उसके पास जाके उससे बात करें। Another judging we have to do is primarily judge ourselves.
और दूसरा जो न्याय हमें करना है वो हमें व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को अपना न्याय करना है। When you spend time with the Lord and ask Him to reveal the secret sins in our heart, He will reveal to us. और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे छुपे हुए पापों को मुझ पे प्रकट कर, तो प्रभु वो दिखाते हैं। How to remove the plank in our own lives, in our eyes. हम अपने आंख के लट्ठे को कैसे निकाल सकते हैं? Some sins are very secretive and we are concealed, we don't even know. और बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। In Psalm 90 verse 8, the psalmist is Moses, he writes about God, to God, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. और भजन 19:8 जो कि 19वां भजन जो कि मूसा का भजन, उसमें कहता है, यहोवा का उपदेश स्थिर सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है, यहोवा की आगे निर्मल और आंखों को ज्योति ले आती है। So he will, 90 आई थिंक इट्स 90 भजन 90 सॉरी हाँ Psalm 90 verse 8. 90 का 8 है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। What is concealed, He will reveal to us. So when you go to God in prayer, He will reveal what is in our hearts, those secret sins we don't even know. तो जब हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, तो प्रभु हमारे छुपे हुए पाप जिनके बारे में हमें खुद नहीं मालूम, वो प्रभु हमें दिखाएंगे। Sin is very deceitful. It enters our life without us knowing it also. और पाप जो है बड़ा छली होता है, छलावा वाला होता है, हमारे जीवन में हमें बिना हमारी जानकारी के भी आ जाता है। Hebrews 3:13 talks about the deceitfulness of sin. इब्रानियों 3:33 जो है पाप के इस छलावे की बात करता है। Can you imagine David committed adultery with Bathsheba? He arranged the murder of Bathsheba's husband Uriah. Yet for 9 months after, he didn't even realize what he had done. He had not been convicted. 9 months. Only when he told him a story, he understood what he had done. और दाऊद ने जब बैशेबा के साथ पाप किया, तो वो 9 महीने तक उसे पता ही नहीं चला, वो उसको अनजान था इस पाप से, और 9 महीने के बाद ही उसको पता चला, जब ये बात सामने आई कि हाँ उसने तो पाप किया है। He was blinded by his own sin and he was not aware of what he had done in the heart. अपने पाप से वो अंधा हो चुका था और अपने हृदय में नहीं जानता था कि उसने ये पाप किया है। By the time Nathan came and told him a story and David realized it, the child had been born from Bathsheba. और जब तक नाथान आया और उसको कहानी सुना के उसको बताया, तब तक जब उसे समझ में आया कि हाँ उसने पाप किया है, तब तक वो बच्चा जन्म ले चुका था। So at least for 9 months at least approximately, he did not realize what he had done because he was deceived, blinded by sin. तो लगभग 9 महीने वो पाप के उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो पाप के द्वारा से अंधा और धोखे में पड़ा हुआ था। In Psalm 36 verse 2 it talks about people who flatter themselves too much to detect or hate their sin. और भजन 36 के दूसरे आयत में लिखा है, वे अपने अधर्म को प्रकट करने और घृणित ठहराने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। So in other words, it can be very deceitful, but when you go to God in prayer, He will reveal. He is a convictor of sin. He will reveal. Then we have to repent of it. और ये शैतान जो है इस तरह से छुपाता है, पर जब प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में ऐसे छुपे हुए पापों को प्रकट करता है। David didn't trust his own intellect, his own wisdom to detect sin in his life. दाऊद ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ के ऊपर भरोसा नहीं किया उस पाप को समझने के लिए। In Psalm 139, verse 23 and 24, he writes, is a prayer of David to God. और भजन 139 उसकी 23 और 24वीं आयत में दाऊद की ये प्रार्थना है परमेश्वर से, Search me, O Lord, and know my heart. हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। Test me and know my anxious thoughts. और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। If any offensive way in me, lead me in the way everlasting. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। When God reveals to us, because He convicts us of sin, the Holy Spirit, then we must agree with this counsel and repent and ask Him help to come out of that sin. और जब प्रभु हमारे जीवन में इस पाप को प्रकट करता है, तो हम उसकी सहायता से अपने जीवन में उससे मदद मांगे और उस पाप में से निकल आए। Please don't say to God, Lord, I will never do this again. I'm going to live a holy life. Yes, we can live a holy life. But don't ever say, I will never do this again. Don't put trust in your own self. कभी भी अपने पे भरोसा रखकर ये ना बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं ये पाप दोबारा कभी नहीं करूंगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के सामने कभी भी ऐसा ना बोले कि मैं दोबारा ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। Or ask Jesus to help you to turn from it. Say, Lord, I want to live a holy life. You help me, Lord. He's a helper.
अपनी सामर्थ्य पर भरोसा ना करें, परमेश्वर से कहें प्रभु आप मेरी मदद करें और वो आपकी मदद करेंगे। Hebrews 2:18 talks about Jesus Christ our Lord. इब्रानियों 2:18 में उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमारे प्रभु के बारे में ऐसा लिखा है। He himself suffered while being tempted. He is able to help those being जिनकी tempted. परीक्षा होती है। Help those being tempted. यस ब्रदर। Hebrews 2:18, brother. Can you read it? सम नेटवर्क प्रॉब्लम आई। Okay. Could someone read? आई रीड अगेन। नाउ माय वॉइस इज कमिंग ब्रदर। Yeah, it's coming. Yes. या क्योंकि उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Also, please read Hebrews chapter 4, 15, 16 in Hindi. इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत को भी पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Daya or Anugrah, avashyakta ke samay. When you face temptation, he'll give you grace and mercy to turn from it. तो जब हम परीक्षा में जाएंगे हम परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर अपना अनुग्रह और दया हियाव हमारे को देगा ताकि हम इस परीक्षा पे सफल हो सकें। So we are supposed to judge ourselves, agree with the counsel of the Holy Spirit, conviction of the Holy Spirit, and say, Lord, I have sinned, I want to repent, and ask Him strength to come out of it. And once you judge yourself, we will not come under judgment. तो हमें अपना न्याय करना है और जब पवित्र आत्मा जी हमारे प्रकट करते हैं किसी पाप को, हमें उससे क्षमा मांगनी है, परमेश्वर की सहायता से उसमें से बाहर निकल के आना है और अपने आप को परमेश्वर के सामने से सही करना है। 1 Corinthians 11:31 says, if we judge ourselves, we will not come under judgment. तो पहला कुरिन्थियों 11:31 में लिखा है, 11 अध्याय 31वीं आयत में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। So two kinds of judging we should do. तो ये 2 तरीके के न्याय हैं जो हमें करने हैं। Judge yourself, पहले अपने आप को जांचें, turn from sin, पाप से मुड़ें, and then judge people within the body of Christ who have the same sin and any other sin they might have, which you don't have, then correct them also. और दूसरा कोई कलीसिया में परमेश्वर की देह में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें वो पाप है जो आप में भी है, पहले अपने आप को ठीक करें और फिर जाके उसको भी बताएं। The two kinds of judging we should not do. पर अब 2 तरीके के न्याय ऐसे हैं जो हमें नहीं करने हैं। What is that? What are those? वो 2 न्याय कौन से हैं? Number one, do not judge those outside the church, people of other faiths. पहला है कि हमारे को जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे विश्वास के लोग हैं, उनका हमें न्याय नहीं करना। They cannot turn from sin without the help of the Lord. Jesus said in John 15:5, apart from me you can do nothing. और बिना परमेश्वर की सहायता से वो मन नहीं फिरा सकते, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Don't expect them to be holy without the power of the Lord and knowing the Lord Jesus. परमेश्वर की सहायता के बिना आप कभी भी ये ना सोचें कि वो उम्मीद ना करें कि वो पवित्र हो जाएंगे और शुद्ध हो जाएंगे। They can't be godly without knowing the truth. बिना सच्चाई को जाने वो धर्मी नहीं बन सकते। People of this world think if they are godly, they will achieve the truth. They will get salvation. They will know God. संसार के लोग सोचते हैं अगर वो धर्म के जीवन जिएंगे, धार्मिकता से जीवन जिएंगे, तो वो परमेश्वर को पा जाएंगे और वो पवित्र हो जाएंगे। They think godliness is means of knowing the truth. और सच्चाई वो धार्मिकता को प्रयोग करते हैं सच्चाई को जानने के लिए। The other way around. Knowing the truth leads to godliness. Titus 1:1. पर तीतुस 1:1 के अनुसार सच्चाई को जानना ही सच्चाई ही हमको धार्मिकता की ओर लेके जाती है। They can't be godly without knowing the truth. Until they turn to Christ, they are under the devil's control. Therefore, don't judge them. Leave it to God to deal with them.
और जब तक वो सत्य को नहीं पहचानेंगे, वो भक्ति के अनुसार जीवन नहीं जी सकते, वो क्योंकि वो शैतान के वंश में है, और शैतान जब तक परमेश्वर उनको नहीं छुड़ाएगा, वो उसमें से नहीं निकल सकते। They are under devil's control. We can't expect them to be holy because they are under devil's control. वो शैतान के वश में है, और आप उम्मीद नहीं रख सकते कि वो पवित्र हो, क्योंकि वो शैतान के वश में है। That's why in 1 Corinthians 5:12, Paul writes, what business is it of mine to judge those outside the church? और पहला कुरिन्थियों 5:12 में इसलिए लिखा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने का से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? He will deal with them. वो परमेश्वर खुद उनका न्याय करेगा। Take the Apostle Paul, for example. He was a Pharisee. As a Pharisee, he was very, very hateful of idol worship because he, as a Pharisee, was stickler for the law. और पौलुस जो था वो फरीसी था, और वो अपने जो फरीसी नियम के अनुसार वो मूर्ति पूजा से बड़ा घृणा करता था, क्योंकि ये बड़े कट्टर लोग होते थे। But when he goes to Athens, he sees the city full of idols. और जब वो एथेंस में जाता है, वहां देखता है पूरा शहर मूर्तियों से भरा हुआ है। He is distressed about that. 17th chapter of Acts, verse 16 says he was distressed at idol worship. और प्रेरितों 17वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि वो सब देख के, मूर्तों से भरा हुआ देख के, वो उसका जी जल गया। He condemned idol worship but not idol worshippers. और वो मूर्ति पूजा की बुराई करता है, उनको बुरा बोलता है, पर मूर्ति पूजकों को बुरा नहीं बोलता। As a Pharisee, he would have hated idol worship. और जो क्योंकि फरीसी होने के नाते तो उसको मूर्ति पूजा से भी घृणा होनी चाहिए थी। But he realized that these people in Athens, they are blinded. They're blinded by the God of this age, the evil one. पर वो उस बात को समझ गया कि ये एथेंस के जो लोग हैं, इस संसार के परमेश्वर ने, ईश्वर ने इनको अंधा कर रखा है। Instead of condemning them, he's commending them for their pious religiosity. और वो उनको दोष लगाने की बजाय उनकी बड़ाई कर रहा है कि वो किस तरह से परमेश्वर की उपासना करते हैं। His ministry came from love of God. He loved them because they are blinded. और वो उसकी जो सेवकाई थी वो परमेश्वर से प्रेम के अनुसार, प्रेम से आती थी, और tells वो them जानता that- था कि ये लोग अंधे हैं शैतान की वश। He tells them the religious people, as they walked around so many objects of worship, and what he worship is, I even saw an altar an unknown God. What you worship unknown, I'm going to proclaim to you. And he shares the gospel. और वो कहता है कि मैं जब जा रहा था, मैंने बहुत सारी मूर्तों को देखा, और एक जगह ऐसी भी जगह देखी जो खाली थी, वहां लिखा था एक अनजान ईश्वर के लिए, जिसको तुम नहीं पहचानते उसकी उपासना करो, और उसी के द्वारा से वो उनको सुसमाचार देता है। In Acts 17:30, he says, in the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. और प्रेरितों 17:30 में उनसे कहता है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। So don't condemn people other faiths who are doing wrong things. Don't judge them. Pray for them. They'll come to know the truth, and the truth will set them free. Knowing the truth will make them godly. और आप दूसरे विश्वास के लोगों को आप उनको बुरा ना बोलें, उनको दोष ना लगाएं, क्योंकि वो अज्ञानता में है, और जब वो उनको परमेश्वर अपनी सच्चाई प्रकट करेगा, सच्चाई को जानेंगे, तो वो परमेश्वर उनको धार्मिकता भी देगा। The third kind of judging is judging unbelievers, which we should not do. और चौथा जो न्याय करना है, वो अविश्वासियों का न्याय, वो जो हमें नहीं करना है। The fourth kind of judging is judging ourselves in the context of how good we are. और एक न्याय ये है कि हम अपने आप अपना न्याय करें, ये सोचते हुए कि मैं कितना भला हूं। Don't do that. ऐसा ना करें। We judge ourselves when it comes to sin. We don't judge ourselves with regard to how good we are compared to others. और हम जब पाप करते हैं तो हम ये ना कहें कि दूसरों की तुलना में मैं कितना भला हूं। No, I'm not saying pap. When people compare you to other people, don't think of yourself greater than somebody else. Don't judge yourself in the context of how better you are than somebody else. अच्छा, जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, उनकी तुलना अपने से ना करने लगे कि मैं तो इनसे बहुत भला हूं। For example, when Paul was in Corinth, the people in Corinth were saying, some were saying, I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas, I follow Jesus, and they were all divided. और जैसे कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस बताता है कि कोई पौलुस की, कोई अपोलोस की, कोई किसी को यीशु मसीह की, वो अलग अलग बोलते हैं, हम तो उसके पीछे चलने वाले हैं। And the people comparing Paul and Apollos, they have different styles. Paul was spoke by the anointing Holy Spirit, whereas Apollos was a very good speaker, very eloquent. Paul was not so eloquent at all. He was not a trained speaker. So there are comparisons.
और लोग जो है उनकी तुलना करने लगे अपोलोस की। पौलुस जो था पवित्र आत्मा के अभिषेक से काम करता था। अपोलोस जो था वो बहुत अच्छा वक्ता था। और पौलुस खुद कहता है कि मैं तो अच्छा बोलने में अच्छा नहीं हूँ। He didn't get into this controversy, Paul. और पौलुस इस तुलना में जो लोगों के अंदर वाद विवाद था उसमें नहीं पड़ता। People in the Corinthian church were judging Paul and Apollos and comparing and saying he's better or he's better. I follow Paul, I follow Apollos. But Paul did not judge himself in terms of is he better than others or not. और लोग जो है उनकी तुलना कर रहे हैं कि पौलुस ज्यादा अच्छा है या पौलुस ज्यादा अच्छा है। पर पौलुस जो है इस लफड़े में नहीं पड़ता। और वो इस तुलनात्मक जो बात है इसमें पड़ता ही नहीं है वो। In 1 Corinthians chapter 4, verse 3, he says, I don't judge myself. पहला कुरिन्थियों 4:3 में वो कहता है वरन मैं आपको नहीं अपने आप को नहीं परखता। People are judging me and Apollos, but I don't judge myself. I don't think I'm better than Apollos. लोग तो मेरा और पौलुस का तुलना कर रहे हैं पर मैं अपना न्याय अपने आप को नहीं परखता। In the first two verses he writes of 1 Corinthians 4 chapter, men ought to regard as the servants of Christ and are those entrusted with the secret things of God. और पहली दो आयतों में इसी अध्याय की पौलुस लिखते हैं मनुष्य मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। And he goes on to say next verse, it's required that those who have been given a trust must prove faithful. और दूसरी आयत में लिखा है फिर यदि भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। They both had different kinds of ministries, both Apostle Paul and Apollos. और पौलुस की और अपोलोस की दोनों की अलग अलग तरीके की सेवकाई थी। And people are comparing, but Paul said, no, I won't compare. He also understood, he explained to them in 1 Corinthians 3rd chapter, 6 and 7, who's और लोग Apollos? They are only servants of God. He goes on to say, I planted the seed, Apollos watered it, but God gave the growth. और वो लोग उनकी तुलना करते हैं। पौलुस कहता है कि मैंने लगाया अपोलोस ने सींचा परंतु परमेश्वर ने इसको बढ़ाया। और वो इस तुलना से बाहर निकलता है। I planted the seed, Apollos watered it, but God gave the growth. तो कहता है मैंने लगाया अपोलोस ने सींचा परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। Neither he plants anything nor he waters, only God gives growth. इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला परंतु परमेश्वर ही जो बढ़ाने वाला है। He clearly understood that, so he's not comparing himself. He said, I don't judge myself. वो इस बात को समझ गया इसलिए वो कहता है मैं इस बात में अपने आप को नहीं जांचता और मैं कोई नहीं हूँ अपने आप को जांचने वाला। Look at the 7th verse. 7th verse he writes, 7वीं आयत में लिखता है who makes you different from someone else? इसलिए ना तो लगाने वाला और ना सींचने परंतु परमेश्वर। इन दोनों में फर्क कौन करता है? What you have which you did not receive? If you received it, why did both as well did not? लगाने वाला और सींचने वाला दोनों परंतु हर व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। So whatever we have is a gift of God. We are only recipients of the grace of God, the ministry of God, and we can't boast about ourselves. We boast about the giver. और इसलिए जो भी हमारे को सेवकाई मिली है उसमें हम घमंड नहीं कर सकते। जो भी हम सेवकाई हमें मिली है उसके लिए जिसने हमें सेवकाई दी है वो देने वाला की हमें तारीफ करनी, उसकी बड़ाई करनी है। People in the ministry so often get caught up with these comparisons and they compare them to other people and never do that. People might do that. You didn't go and get caught up with this controversy. और सेवकाई में बहुत दफा लोग इस बात Oh, brother, I think network problem. अगेन गॉन। And now it's come back. It's come back. Yeah. Okay. Now in the ministry, so often in the visible ministry, हेलो। yeah. Can you hear me now? यस ब्रदर प्लीज रिपीट। Yeah. In the ministry, the visible ministry, meaning preachers, teachers, praise and worship leaders, they are a visible ministry. Everybody looks at them and they are in the pulpit, and the people start comparing them. और जो जो सेवा में होते हैं जो दिखाई देते हैं जैसे जो प्रचार करते हैं जो वचन देते हैं जो गीत गाते हैं ये दिखाई देने वाले दिखने वाले लोग हैं। There's temptation to get involved in the comparisons and because of our pride. और ऐसे में बहुत बहुत मुमकिन हो जाता है कि हम तुलनात्मक रूप से फंस जाएं अपने घमंड के कारण से। Please don't get caught up with that. Just remember you're a servant of God, glorify Jesus, edify people, and don't worry about how good you are compared to somebody else. तो आप इस तुलनात्मक विषय में ना पड़ें। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और जो आपको क्या मिला उसको करें और
परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो भी आपको काम मिला उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। In fact, to the Philippians, Paul writes in Philippians 2:3, in humility, consider others better than yourselves. और फिलिपियों और दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत में कहता है, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Every good thing we have is a gift of God, and don't boast about the gifts. Please boast of God who gave you the gift. हर एक भले दान जो हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए उस पर घमंड ना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने ये दान दिया है। People are people. Christians are Christians. They'll compare. They will slander. They'll one side they slander, the other side they'll praise you behind. They'll praise you behind the back. They'll curse you. तो लोग हैं, वो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। We shouldn't get caught up with all these comparisons. तो आप इस तुलनात्मक बातों में आप ना फंस जाएं। I remember once I was speaking in a meeting in Western India, and this man who didn't know me at all, he heard about me and he introduced me to the whole church and said, "This is Raj Kumar. He is so and so of India, some big preacher in the West. He is so and so of India." तो भाई एक बार पश्चिम भारत में कहीं प्रचार करने गए थे और वो जो व्यक्ति वहां पे था उसने भाई को ऐसे लोगों को बताया कि ये भाई राजकुमार जो हैं, जो इसे पश्चिम देश में फलाना व्यक्ति है, उसी तरह से भाई राजकुमार भारत के वो हैं। I very politely told them, "I am not so and so of India. I am Rajkumar of India." तो भाई ने बोला कि बड़ी नम्रता से, मैं भारत का उस देश के व्यक्ति के समान नहीं हूँ, मैं तो भारत का राजकुमार हूँ, बस भारत का एक व्यक्ति हूँ। I'm not against that person, but praise God for that person used by God. But I am myself. God called me specifically for a call. I have to fulfill the calling. Don't compare with anybody. और उस व्यक्ति की बुराई भी नहीं कर रहे भाई, पर ये कि हमें अपने किसी चीज की बुराई नहीं, बड़ाई नहीं करनी अपनी है। जो भी परमेश्वर ने दिया उसको, उसके परमेश्वर को उसको महिमा उसको देनी है। We have to fulfill God's purpose for each one of us and pursue in that fulfilling God's will for us. तो परमेश्वर की हर एक इच्छा जो हमारे लिए है, उसको हमें पूरा करना है और उसी में हमारे को लगे रहना है। The 4 kinds of judging. तो 4 तरीके के न्याय करने की बात को हमने देखा। Number 1, please judge fellow Christians after removing your own sin, which you're correcting them about. और सबसे पहली बात, हमें कलीसिया में अपने जो मसीह भाई हैं उनका न्याय जरूर करना है। उनको अपने आप को पहले ठीक करके फिर उनको भी उनके व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिलके उनको परमेश्वर के पास वापस लाना है। Correct in love. प्रेम से उनको सही रास्ता दिखाना है, The सही motivation सुधार of building them up in a closer walk with God. और ऐसा करके हम उनको परमेश्वर के साथ नजदीकी में चलने में हम उनको मजबूत करते हैं। Before correcting others, correct yourself. Judge yourself. इससे पहले दूसरे का न्याय करें, अपने आप को ठीक करें, अपना न्याय करें। If you got a sin, correct yourself. अगर हमारे जीवन में पाप है, हम उसको पहले अपने आप को ठीक करें। Once you repent, you will not come under judgment of God. तो एक बार हम पछतावा करेंगे, परमेश्वर के न्याय से हम बच जाएंगे। When it comes to unbelievers, don't judge them. जहां अविश्वासी लोगों की बात आती है, आप उनका न्याय ना करें। They're under devil's control, you can't expect holiness from them. वो शैतान के वश में है, आप उनसे धार्मिकता की बात उम्मीद नहीं रख सकते। If they ask you about God's will in the situation, then tell them what God requires of them, but don't expect them to do it without the help of Jesus. और अगर आपसे वो पूछते हैं, सलाह मांगते हैं, आप उनको जरूर बताएं परमेश्वर के वचन के बारे में, उन परमेश्वर के बारे में, पर उम्मीद ना रखें जब तक कि परमेश्वर खुद उनको परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करते। Both judging is we should not judge ourselves as to whether we are better than somebody else or not. How good you are, don't judge. तो और चौथा बात है कि हमें ये न्याय नहीं करना कि मैं कितना अच्छा हूं, दूसरे से तुलना करके अपने आप को नहीं जांचना। So the topic for today was actually judging right or wrong. और आज का विषय वास्तव में ये था कि न्याय करना सही या गलत है। 2 kinds of judging right, 2 kinds of judging wrong. 2 तरीके का न्याय है जो सही है, जो हमें करना है। 2 तरीके का न्याय है जो हमें नहीं करना है, जो गलत है। May God bless each one of us. परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।